सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। आज का विषय है तपस्या, तप, और इसकी समरी करेंगे शीश रत्नपाल की। शुरू करो। हाँ महाराज, शुरू करता हूँ। बंद कर। हाँ। Spiritual life is like a war against enemies like lust, anger, greed, egoism, etc. It has been realized that this war is more difficult against the internal enemies rather than the external ones. Like in any war, be it internal or external, we should have perfect preparation and planning before we face the enemies. We should be aware of the rules and regulations of the game along with strategies and tactics. Some of the questions need to be answered first. Am I fit for a long struggle? Is my desire for spiritual life just a temporary attraction? Who are my enemies? How can I overpower them? All the various systems of spiritual disciplines prescribe certain preliminary requirements, and tapas is one of them. Why, what do you mean by tapas? Tapas means austerity. The word tapas has been derived from Sanskrit, which means to give out heat, become hot, to shine, to suffer pain, to undergo self mortification, to purify by austerity. Just like gold is purified by heating, our mental impurities are destroyed by tapas. When physical hardships like hunger, thirst, heat, cold are voluntarily induced and born, it is called as tapas. In Upanishads, we get ample evidence of tapas as process of intellectual churning. In Jainism, there are two types of tapas, like physical, which include fasting, eating less, self-mortification, and internal, which includes humility, meditation, scriptural study, confession, and repentance. In Bhagavad Gita, tapas is classified as tamasic, rajasic, and sattvic. All the great saints of different religion had prescribed tapas. Even Ma Sarada Devi and Sri Ramakrishna had undergone great austerity. Every day we have to face a number of physically and mentally painful or uncomfortable situations. Lord Krishna advises us to forbear all of them. Partial or total fasting for a day or more is one of the chief types of tapas prescribed in almost all religions and not and at all the times. According to Sri Ramakrishna, truthfulness is austerity for the present Kali Yuga. According to Swami Brahmanand, brahmacharya or continence is the best tapas. Real tapasya lies in three things. You must be truthful, you must get rid of lust, you must gain control over your vasanas. Practice of continence is much more important and efficacious than mere physical austerity like fasting. Sister Nivedita has referred to another form of austerity for modern times, and that is living harmoniously with people of different temperaments, especially in religious community. From ancient times, service, especially to the Guru, was prescribed and practiced as an excellent form of tapas. It combined in itself the practice of self control, self denial, surrender of one's wills and desires, obedience, which are essential features of the tapas. One may, in initial stages of one's spiritual life, take up isolated austerities as part of one's sadhana. But ultimately, our life must become a continuous austerity
as was the case with Swami Vivekananda. Austerity must become so natural that it becomes a way of life. The whole being, every aspect of our personality must become alert, intense, and concentrated. The aim and purpose of all external and internal austerities is attainment of deep meditation. Very good. Excellent. Excellent. Very good. Now we take up questions. Subir, जी फर्स्ट महाराज। ऑफ ऑल एक, हाँ, तुमने जो तपस्या के क्वेश्चंस किए हैं ना, जी महाराज जी। और उसके बाद तुम्हारा जो नोट है वो बाद में दूंगा, विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ द पर्सन हु इज गिवन। ओके, यू विल नॉट बी। ओके, तुम्हारे क्वेश्चन पूछो। महाराज, does tapas mean because tapas mean weakening the body, though it strengthens the mind, because whenever somebody does tapasya, the body is affected. So is it a price that every aspirant has to pay? हर devotee ये जो क्वेश्चन है, ये कई लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। तपस्या से क्या शरीर को कष्ट होता है? महावीर जो है जैन तीर्थंकर, उन्होंने करीब करीब आधा जीवन, अपना आधा जीवन जो 12 वर्ष की उन्होंने तपस्या जो की, इसमें तो आधा जीवन उन्होंने करीब 6 वर्ष उन्होंने उपवास किया, और 72 वर्ष एक साथ नहीं, कभी 15 दिन का, कभी 5 दिन का, कभी 7 दिन का, ऐसा अगर काउंट करें तो इस प्रकार का होता था। लेकिन 72 वर्ष तक जीवित रहे थे वो। दूसरी बात यह है कि अभी तो हमारा जो लिविंग है वो इतना उल्टा स्टाइल का है, भोगवाद का लिविंग है। उससे डायबिटीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, हार्ट डिजीज हो रही है, ये उल्टा हो रहा है। हमारा भोगवादी जीवन है, इसलिए उसको कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है। ये दो बातें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। गीता में भगवान बार बार कहते हैं, वो युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार विहार की बात बार बार कहते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टतः युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो तपस्या ने शायद नहीं सोचे, खाते थे क्या नहीं खाते थे हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में, उनके खाने का कोई भान ही नहीं था। महावीर का भी था, वो ध्यान में डूबे हुए हैं, तपस्या में डूबे हुए हैं, तो दिन चला गया 1 2 3 4 दिन कंटिन्यूअसली वो डूबे हुए हैं, कौन खाएगा? तो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप भगवान के ध्यान में पूरी तरह मग्न हो जाएंगे तो खाना पीना छूट जाता है, शरीर का बोध छूट जाता है। और ऐसे में सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी का शरीर वो 40 साल में चला गया, लेकिन उतने जीवन में उन्होंने कितना क्या किया है। थोड़े से जीवन को जीकर उन्होंने जो किया है वो हम 1000 वर्ष भी जीवे तो नहीं होगा। हमारी एक विचित्र धारणा है कि शरीर को पोषण करके रखना चाहिए, शरीर दुर्बल नहीं होना चाहिए। अरे मन अगर सबल होवे तो शरीर की कोई चिंता नहीं। ये है, तपस्वी जितने लोगों हैं उन्होंने शरीर की डेफिनेटली उपेक्षा की है। तुम्हारा प्रश्न इस दृष्टि से सही है, शरीर की उपेक्षा, शरीर को जो पोषण अभी जो कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, स्पष्ट रूप से इस बात को बताते हैं, शरीर पोषणार्थी सन यह सारम वो ब्रह्म नदीम तप्तुम इच्छति, वो संसार को जानना चाहता है, वो ऐसा व्यक्ति है जो मगर की सहायता से मगर के ऊपर बैठकर नदी को पार करना चाहता है। हम अपने शरीर को पोषण करके हम सोचते हैं कि हम तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है, ये शरीर ही हमको डुबाएगा। ये अधिकांश हमारी समस्या है, शरीर का ओ पैम्परिंग, दिन में 3 बार खाना, पूरा खाना, उसके बाद बीच बीच में खाना, और जो बढ़िया खाना, ये सब हम करते रहते हैं। और बाद में जब बात होती है तपस्या की तो बात करते हैं कि अरे शरीर को अगर पोषण नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो तुम्हारा प्रश्न इन दैट सेंस इज ट्रू।
उद्देश्य को वीकनिंग शरीर का नहीं है, उसको टेम्पर करना है। देखना आर्टिकल मेरा पढ़ के ध्यान से, उसमें लिखा है कि तपस्या से हमारा बॉडी एंड माइंड टेम्पर होता है, वो बेस्ट पोजीशन में होते हैं। और गीता में भगवान जैसा कहते हैं, युक्ताहार विहार करो, एक्सट्रीम को नहीं जाओ। जैनिज्म की जो एक्सट्रीम है वो मैं एनकरेज नहीं करूंगा, लेकिन ये भी आवश्यक है कि हमारे जीवन में तितिक्षा थोड़ी बढ़े। और तपस्या का बहुत बड़ा, जब आहार वगैरह का कम करने का बहुत बड़ा जब एडवांटेज ये है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारी कितनी आसक्ति शरीर से है, हमारी वासनाएं बाहर आ जाती हैं। हमें अभी कुछ नहीं जानते हैं, बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है इसलिए ठीक है। अब आप 24 घंटे उपवास कीजिए, आप देखेंगे कि आपका मन कहाँ कहाँ खाने की चीजों में जा रहा है। सारे दिन आपको सारी चीजें बढ़िया बढ़िया खाने की चीजों के ऊपर मन जाता रहेगा, याद रखें। ये तपस्या करना एक अपने आप में अपने स्वयं को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक। तो तुम्हारा क्वेश्चन ठीक है, इट इज नॉट रियली मेंट फॉर मेकिंग बॉडी वीक, दैट इज नॉट द आइडिया, बट बॉडी मस्ट नॉट बी टेम्पर्ड, दैट इज द अदर आइडिया। उसको बॉडी की थोड़ी उपेक्षा करने का भाव ज्यादा है, उसको वीक करने का भाव। जी महाराज। दूसरा सवाल महाराज ये है, आपने कहा था वी शुड डू तपस ऑफ रेस्ट्रेंट एंड ऑल्सो ज्ञानमय तपस। हाँ, ध्यान है तपस। तो कौन सा ज्यादा करना चाहिए, रेस्ट्रेंट की? देखो ऐसा है कि ज्ञानमय तपस इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिना रेस्ट्रेंट के तप के नहीं होगा। और वो अभी इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस आएंगे। भृगु जो है वो वरुण के पास, अपने पिता के पास पूछते हैं, जाकर कहते हैं कि मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। भृगु कहते हैं, वरुण कहते हैं उसके पिता कि जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, जगत जिसमें स्थिर है और जिसमें विलीन हो जाता है, वो है ब्रह्म। यानी जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण है वो ब्रह्म, सीधी बता दिया। अब कहते हैं कि तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, मैंने तो बता दिया, अब तुम ब्रह्म को तप के द्वारा जानो। हम लोग भी तो सुनते रहते हैं ना, ये भी हमें ज्ञान, ये हमारा यहाँ पे घंटा भर सवा घंटा जो होगा वो ज्ञान में तक एक प्रकार का है, लेकिन बात मन में बैठती कहाँ पे? इतना सब पढ़ते हैं, हम जीवन में उतार तो नहीं पाते ना। क्यों नहीं उतार पाते हैं? इसलिए कि वो संयम रूप तप, रिस्ट्रेंट रूप तप, ये हमारे जीवन में जितना होना चाहिए उतना नहीं। और तो भृगु ने क्या कहा, वो तप किया, उसने बात क्या निकाला, अन्नम ब्रह्मेति विजानाति, अन्न है ब्रह्म। क्यों? अन्न से जगत की उत्पत्ति होती है, अन्न से रहता है, और अन्न में शरीर जब नष्ट हो जाता है तो अन्न में यानी वही अन्नमय कोश में यानी वो अन्न में ही विलीन हो जाता है। भृगु ने, उसके पिता ने उसको सुना और कहा ठीक है, अब करो, फिर तपस करो, वही है, उसको और तपस करो। उसने फिर प्राण को जाना, उसके बाद मन को जाना, उसके बाद विज्ञान को जाना, और अंत में जाकर उसको उन्होंने ब्रह्म का उपदेश दिया, ठीक ठीक उपदेश दिया। तात्पर्य यह है कि जब तक ज्ञानमय तप के साथ साथ संयम का तप नहीं होगा, तब तक ज्ञानमय को वो हम उसको एम्फसाइज धारण ही नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार से छंदोग्य उपनिषद में आता है, देवता और इंद्र और विरोचन प्रजापति के पास गए और उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आत्मा को जानने से व्यक्ति अमर हो जाता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, आत्मा का उपदेश दीजिए। और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक किया, और विरोचन थे बीच में ही अटक गए। इंद्र हर बार जाते थे, वो कहते थे चलो अभी 32 साल तक यहाँ पे रहो। 32 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, मेरी सेवा करो, तब वह मन चित्त शुद्ध होगा, तब उसको उपदेश देंगे। फर्स्ट स्टेप की उपदेश, सेकंड उपदेश, थर्ड उपदेश, लगभग 100 साल तक उन्होंने तपस्या करवाई। हम ये तो करते नहीं है, हम चाहते हैं ज्ञानमय उपदेश, तपस्या, वो सुपीरियर होते हुए भी संयम रूप तपस्या के बिना नहीं होगा।
योर क्वेश्चन इज आंसर? यस महाराज, बहुत अच्छा समझाया महाराज। और एक लास्ट सवाल है, ओके। आपने अपने आर्टिकल में शुरू में ही कहा है कि हम अपने अंदर के जो दुश्मन है उनसे कैसे पेश आए, क्योंकि वो शत्रु प्रबल है, तो उनका क्या सीधा सामना किया जा सकता है फेस टू फेस? तो मेरा सवाल यही है महाराज जी, उनको क्या सीधा सामना किया जा सकता है या उनको क्षीण करने के लिए दूसरे ही उपाय जो आपने बताए हैं तब करके वो किया जाता है? दैट इज ऑलवेज के ठीक। अब सीधे सामना मत कीजिए, आप तपस्या का जीवन व्यतीत करिए, एक संयमित जीवन, एक आई मीन कंट्रोल्ड, और एक जिसे कहते हैं ना एक सत्संग का जीवन, ऐसे वातावरण में रहिए कि जहां पर ये उठ ना सके। हमारे एनिमीज तो हैं, और हम रोज टीवी देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? रोज न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे तो उसमें तो यही सारी बातें होती है, जो एनिमीज हैं उससे संबंधित ही काम काज की तो बातें होती है। अच्छा तो अच्छा। इनको एक कंट्रोल करना भी अपने आप में एक तपस्या, जी जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट कौन है? इसके बाद में ईतू का है, उसके बाद में निवेदिता के भी हैं। निवेदिता, हाँ जी निवेदिता महाराज। हाँ पूछो। हाँ, मेरा पहला प्रश्न है कि हाउ टू कन्वर्ट द अयुक्त मन इनटू युक्त मन। पहले तपस्या ले लेते हैं, अयुक्त युक्त बाद में लेंगे। अच्छा, तपस्या का मेरा प्रश्न है कि why Thakur did not encourage the women to do fasting tapa? तो वो ठाकुर ने क्या जवाब दिया, वही बताओ, वो भी बताओ। ठाकुर तो खुद ही बोलते हैं ना। शरीर को देना। हाँ बोलते महामाया का रूप है। हाँ, सब माया माया के, वो क्या है कि माँ ठाकुर का इतना महामाया के प्रति माया भगवती का रूप है, जितनी नारियां हैं उनको उसको रूप लगता था, इसलिए वो उसको अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन अच्छा, उसके बाद भी माँ शारदा ने तो पंचतपा किया। हाँ हाँ जी हाँ क्यों किया? जी मैं माँ ने क्या जवाब दिया, क्यों पंच किया है, पंचतपा किया? पंचतपा माने अपनी विरह यातना को दूर करने के लिए। हाँ, ठाकुर का वो विरह यातना, और एक कोई भैरवी जैसी एक लड़की लाल भय कपड़ा भय पहन के दिखाती तप थी करती हमेशा। थी, हाँ, और बार बार कहती थी तप करो तप करो, हाँ, ये उन्होंने किया। अब देखो, ये तप करने से माँ शारदा का विरह भी कम हो गया, लेकिन नहीं, और उसके बाद में वे एस्टेब्लिश हो गए, शांत हो गई ठाकुर के जो महासमाधि के बाद में, वो जीवन उनका फिर सेटल हो गया। ये तपस्या इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि बस वो हमारे जीवन में अप एंड डाउन, जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं उनमें हमको सेटल करने में बहुत मदद करती है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात माँ ने थोड़ी सी बात कही। माँ ने तो यूं भी कहा कि लोग, मगर मैं नहीं करूंगी तो लोग कहेंगे कि क्या किया, माँ ने कुछ नहीं किया, तपस्या ही नहीं की, दिखाने के लिए, मानो दिखाने के लिए। अब ये है कि कम से कम उन्होंने ये बता तो दिया करके कि भाई तपस्या करनी चाहिए, पंचतपा न भी करें लेकिन एकादशी को उपवास करें, या एक बार खाना खावें, और नवरात्र करें, इतना सब नहीं कर सकते क्या? ये तो बड़ी सामान्य बातें हैं, सभी लोग करते हैं, इतने माताएं लोग तो करती हैं, पुरुष भी करते हैं। मैं उधर जाके वहाँ चित्रकूट में रहता था, तो नवरात्र वगैरह आता था तो कोई साधु लोग, कोई गृहस्थ लोग आ जाते थे, वो 9 दिन वहां पे रहते थे, अपना गंगा स्नान वगैरह करते थे, स्तोत्र पाठ करते थे, गीता पाठ करते थे, और उपवास, आधा खाना खाना, ये करना वो करना, ये सब करते थे। कितने लोग आके करते थे नवरात्र, जितने तीर्थ हैं वहां पे नवरात्र करते हैं। तो ये तो सभी लोग करते हैं। तपस्या को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है, ये हमारी भारतीय परंपरा है, संस्कृति है। भारतीय नहीं है, क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम भी है। इस्लाम में तो है ना नवरात्र, वो पूरा तुमको वो रोजा करते रोजा करते हैं रमजान में। 1 महीना। हाँ, तो तपस्या जो है वो डेफिनेट करना है, ये मान के चलना, और अपने जीवन में अच्छी तरह बढ़िया तरह इसको डाल देना।
और जैसा मैंने कहा वो सेंट जॉन ऑफ क्रॉस का मेरा इंग्लिश आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेंट जॉन ऑफ क्रॉस कहते हैं सीक फॉर प्रेफरेंस दैट विच इज पेनफुल, इजंट इट? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इंग्लिश पढ़ा कि नहीं आर्टिकल? नहीं पढ़ा, याद नहीं आ रहा नहीं पढ़ा मैंने है? इंग्लिश वाला नहीं पढ़ा। इंग्लिश वाला पढ़ना, सीक फॉर प्रेफरेंस करके है। Not that which is pleasing, but which is repelling. Not that which is beautiful, but which is ugly. Not that which gives me joy, but that which gives me pain. ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। हम लोग सब बढ़िया बढ़िया चाहते हैं। You know, the basic thing is बाद में है, whole life must become तपस्यामय, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिनायल। बिना उसके इंटरनल लाइफ नहीं डेवलप होती। स्पिरिचुअल लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट तपस्या। ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो माँ शारदा यही बताने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। पंचतपा कौन करेगा? हम लोगों में से कोई नहीं कर सकता। माँ ने ऐसी कठोर तपस्या की, ये बताने के लिए कि बाबा तपस्या का जीवन होना चाहिए। और माँ का जीवन तो तपस्या का जीवन ही था। कहीं कहाँ पे कहीं सुख मिला माँ को? हमेशा तो कष्ट ही कष्ट में रही है। ठाकुर कष्ट में रहे। स्वामी विवेकानंद, मैंने जैसा इस आर्टिकल में लिखा है एंड में, कि हिज होल लाइफ वाज वन कंटिन्यूअस तपस्या। कहीं भी वो उनके जीवन में कहीं लेक्सिटी नहीं थी। इंटेंस, सारा जीवन इंटेंस, ऑलवेज इंटेंस। सोते भी थे तो पता नहीं, कुछ सोचते थे कि कभी सोएंगे नहीं सोएंगे, कुछ चल जाता। पर हमारा यह है कि भाई 5 घंटे 6 घंटे रात को नींद होना चाहिए, दिन को भी 2 घंटे नींद होना चाहिए। क्यों? वो स्वामी विवेकानंद ने रूल्स में बनाया है कि सन्यासी को 2 घंटे सोना, दोपहर को 2 निकाल। स्वामी जी को इनाम दे। पर्टिकुलरली यंग एज में तो एक तपस्या की आदत बना लेनी चाहिए जो ओल्ड एज में भी बने रहे। ओके, ये दोनों हो गए तुम्हारे। जी मैम। इतु, इतु, इतु कहाँ गई? इतु घोष क्या हुआ? अनम्यूट करना पड़ेगा। इतु जी वो अब सुनाई दे रही है? अब सुनाई? हाँ, अब आवाज आ रही है जी। अच्छा, ये तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो डिस्कस हो गया हाँ। है ना, ज्ञान में तब हो गया जी। सेकंड है, हाउ डज तपस रिमूव्स फियर? तो ये नहीं है, वो तो वैराग्य की बात है। तुमने उसको कंफ्यूज कर रहे हो। वैराग्य में वा भयम, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जया जराया भयम। ये जो है ये वैराग्य के ऊपर में डिस्कस हुआ। और उसमें क्या है? सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य में वा भयम। संसार की सभी वस्तुएं जो हैं भय से पीड़ित, भय से लगी हुई है, केवल वैराग्य ही अभय प्रदान करता है। तो भय प्रदान, तो तपस्या का डायरेक्टली उससे भय से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन है, इफ हाउसहोल्डर्स हैव नॉट गॉन थ्रू so much of external tapas, do the internal tapa will be enough. That is what a strict internal tapas only can help in God realization? ना ना किचु नहीं, घोड़ा डिम। अरे these are excuses, these are excuses। हम इंटरनल तप कर रहे हैं और मजा कर रहे हैं। रोज क्लास में ये एक सप्ताह की क्लास है तो इंटरनल तप हुआ, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं होता। See, this will not do. You have to do physical tap also. You know, कठोर शारीरिक तप भी करना चाहिए। अब पूरा खाने पीने को कंट्रोल करो, मिठाई नहीं खाएंगे कंट्रोल करो, कुछ चीजें जो हमारे को बहुत प्रिय लगती हैं उसको हम छोड़ देंगे। These are various things have to be done. Without that नहीं होगा। और तुम जानोगे तब समझ में आएगा हमारा मन कैसा है। अरे ब्रह्म ज्ञान की बात, गॉड रियलाइजेशन की बात दूर की बात है। हम अपने मन को ही नहीं जानते हैं, हमारी कितनी वासनाएं इत्यादि सब भरी पूरी। तो दिस विल नॉट डू। ओके जी। अब कौन है? निवेदिता हो गया, वो हो गया,
अब दिलीप भाई हैं, और कौन है? भाई दिलीप भाई, हाँ जी महाराज। हाँ मैदान में आ जाओ। तपस्या के क्वेश्चंस। हाँ तपस्या। महाराज मेरा ये सवाल है कि ये जो मजूमदार साहब ने बताया था पहला सवाल, उससे जुड़ा हुआ है कि साधना करने के लिए शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कमजोर शरीर से साधना ध्यान नहीं हो सकता है, और जब हम तप करते हैं तो शरीर वीक होता है। तो ये दोनों में विरोधाभास। हमने डिस्कस कर लिया, ये फालतू की बातें हैं। जी। अगर आपको 20 साल कठोर तपस्या में शरीर आपका चला जाए, 40 बरस की उम्र, 50 बरस की उम्र में अगर शरीर चला जाए कठोर तपस्या करके, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि तब तक आपको कुछ न कुछ ब्रह्म ज्ञान या कुछ उपलब्धि अवश्य हो जाएगी, अगर ठीक ठीक आप तपस्या करेंगे। और कितने लोग हैं, अधिकांश लोग जो हैं, जितने भी महापुरुष हो गए हैं, कोई 40 की उम्र में चले गए, कोई 50 की उम्र में चले गए। स्वामी विवेकानंद 39 की उम्र में चले गए, स्वामी श्री रामकृष्ण 50 की उम्र में चले गए। इन लोगों ने कठोर तपस्या करके अपने शरीर की चिंता नहीं। ये एक अपने मन में एक विचित्र विचार है कि हमारे शरीर वीक हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, शरीर मर जाएगा। जवानी में जम के प्रश्न करना चाहिए। वैसे गीता में कहा है युक्ताहार करो, इतना मत करो कि शरीर कष्ट हो जाए। भगवान गीता में कहते हैं कि वो तामसिक तप होता है, जो कठोर जबरदस्ती 8-8 दिन उपवास करना, वैसा नहीं करते हैं आपको। लेकिन भाई दिन में 3 बार खाते हो, 2 बार खाओ ना, इतना तो करो। एकादशी के दिन थोड़ा सा ज्यादा कर लो, उपवास कर लो, कुछ नहीं होगा, शरीर को बढ़ के अच्छा रहेगा। याद रखिए, मेरा आर्टिकल में पढ़िए, शरीर को ये तपस्या के द्वारा शरीर जो है वो सम होता है, ये रिदमिक होता है। माइंड जो है वो रिदमिक होता है। ये 20 सिंह जो है वो उसमें जरा संयम, वो अच्छे हो जाते हैं। हम इतना नहीं चाहते कि बिल्कुल दुर्बल हो जाए कि आप उठ ही नहीं पाओ, ऐसा नहीं चाहते। थोड़ा करके देखो, कम खा के देखिए, 1 रोटी आप सुबह शाम अगर कम कर देंगे, देखेंगे आपका शरीर जी। सब उपाय। एकादशी के दिन आप 1 बार खाइए, इतना तो कीजिए। जी। यानी ये कई बार आर्ग्यूमेंट्स हैं, आई डोंट लाइक देयर आर्ग्यूमेंट। जी। जो लोग तपस्या, जैनों के पास जाओगे तो वो तो अरे इतनी तपस्या करते हैं, कहाँ मरते हैं? कोई नहीं मरते हैं। फिर अट्ठाई करते हैं, वर्षी तप करते हैं। वर्षी तप यानी क्या मालूम है? 1 दिन खाना, 1 दिन नहीं खाना। और कहीं एकादशी बीच में जिस दिन खाना वाला उस दिन एकादशी आ गया तो वो भी नहीं खाना, तो 3 दिन नहीं खाना, कभी 5 दिन नहीं खाना, साल भर तक करते हैं। तो क्या होता है? शरीर के डूबता है क्या? कुछ नहीं होता, मैंने देखा है। बल्कि चेहरे पे रौनक ज्यादा आ जाती है। और उसके साथ में आप शास्त्र पाठ कीजिए। और तपस्या का उद्देश्य है कि खाने पीने में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना। इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट में कर रहे हो गए कि लोग जो है तपस्या करने वाले, ये लोग एकांत में चले जाते हैं, खाने पीने की चिंता नहीं, सुबह से शाम तक ध्यान जब करते थे, रात को आते थे, थोड़ा बहुत खाते थे, फिर सो जाते थे, फिर सुबह उठ के। अरे भाई, पहले एक साधक का भाव मन में लाइए, आप देखेंगे कि ये प्रश्न ही नहीं उठेंगे। जी। तुमको लगेगा अरे हम तो कुछ नहीं करते। सेकंड, क्या बिना बाह्य तप के सिर्फ विचार प्रधान एक निष्ठ गहन चिंतन पर आंतरिक तप द्वारा संपूर्ण तप क्रिया संभव हो सकती है? डिस्कस हो गया है। अधिकांश नहीं होती। जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि अरे बाबा, बाहर हम लोग बहुत सारे डाइवर्शन हैं। हाँ, ये खाना है, खाने 2 बार 3 बार खाना पड़ता है। हमको खाना तो नहीं बना पड़ता, जाना तो पड़ता है खाने के लिए। और खाने के लिए वहां पे आधा घंटा तो बर्बाद हो ही जाता है हमारा। इससे तो भाई जितने भी महापुरुष हैं क्या करते हैं, वो खाना मिला लेते हैं और पी जाते हैं। जी। कितने कब मिलोगे आपको एग्जाम्पल से? खाना लिया, जो भी मिला उसको मिला के और पी गए। खाना क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, चिंता नहीं है, टेस्ट की कोई चिंता नहीं। टाइम बचता है बाबा। ठीक है, आगे। हाँ, नेक्स्ट सवाल है, सहनशीलता आध्यात्मिक पद के लिए परम आवश्यक है, लेकिन सहनशीलता टॉलरेंस इज अ मस्ट। आध्यात्मिक पद के लिए परम आवश्यक है,
लेकिन सहनशीलता जब करते हैं तब सामने वाला व्यक्ति अधिक शारीरिक मानसिक दुख देता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सहन करोगे? नहीं, पर देयर शुड बी सम लिमिट और अनलिमिटेड वी हैव टू डू इट। और तुम अवॉइड करो, क्या मारने जाओगे उसको? क्या करोगे? कौन करेगा? कौन करता है इस प्रकार का? अधिकांश रेयरली नहीं होता। कोई यदि शत्रु हो तो ही करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोग तपस्या को सहन करते जाते हैं, करते थे। ऐसे संतों की अचानक मुझे याद नहीं आएगा, लेकिन एक संत का है कि तब वो कष्ट देता ही रहा, देता ही रहा, देता ही रहा, चुपचाप सहन करते रहे, सहन करते रहे। आखिरी में वो हैरान होकर उनका शरणागत हो गया कि प्रभु अब मुझे क्षमा करो। और वो कहते हैं कि तुमने तो अच्छा किया, मुझे तपस्या करवा दी, मेरे को तो बहुत पुण्य हुआ। ये मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, पर एक दो संतों की बात महाराज एकनाथ, है। एकनाथ, एकनाथ वो थूकते जा रहा था, नदी में स्नान करने गया, बार बार एक आदमी उसके ऊपर थूकते जा रहा था, फिर गंगा स्नान किया। हाँ, बार बार थूक रहा है, बार बार उसको स्नान करा हाँ, रहा है, बार बार हाँ, बार बार कितनी बार किया, 21 बार या क्या किया। उसके हाँ, बाद हाँ, वो जी जी, हार गया और उसके बाद शरणागत। हाँ। हाँ महाराज, लास्ट सवाल है, विवेक द्वारा आत्मा को अन्य आत्मा से पृथक कैसे किया जा सकता है? ये विवेक क्या है ना, ये तो नित्यानित्य विवेक है, आत्मा अनात्म विवेक है। ये जो है ये किस में है? ये इसी में है क्या? तपस्या में ही हाँ, आया है ना ये? इसी में महाराज ये। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो है महाराज, विवेक हम्म, द्वारा आत्मा को अनात्मा से पृथक करते रहने को परम तप कहना असंगत नहीं होगा। हाँ, यानी मैं पैराग्राफ एक पढ़ लेता ठीक है हूँ। ठीक, हाँ जैन पढ़ो। शास्त्रों के अनुसार तप 12 प्रकार के हैं, जिनमें से 6 बाह्य और 6 अभ्यंतरिक। 6 वो तो हो अभ्यंतरिक गया। तपों में ध्यान भी एक है। शुभ हाँ, एकाग्र आत्म परमात्मिक विषय धार्मिक चिंतन वो एक हो गया, श्रेष्ठ बात हो तप गई, समझ गया। अब ये है कि आत्मा और अनात्म पातंजल योग सूत्र में जी। अज्ञान की डेफिनेशन है कि हम जो अनात्मा है उसको आत्मा समझते हैं, हाँ। जो अनित्य है, मरने वाला है, उसको मरण समझते हैं कि वो सदा बने रहेगा, जो दुखदायक है उसको सुखदायक समझते हैं, और जो गंदा है, अशुचि है, उसको शुचि समझते हैं। ये है अविद्या के लक्षण। उसमें पहला है आत्मा को अनात्मा समझना। ये जो देह है ये क्या है? मैं हूं ना। हमें कहते हैं मैं हूं, मैं बोलते ही मैं आएगा, देह ही आएगा ना। हमने इस देह को आत्मा समझ रखा है और इसलिए हम मरने से डर रहे हैं। लेकिन ये देह तो मैं हूं, मेरी देह है। मैं देह से भिन्न हूं, मैं इसे देख रहा हूं। समझे ना? ये आत्मा नहीं है, अनात्मा। ये विचार के द्वारा मैंने कहा कि मैं आत्मा, ये देह जो है मेरी है, मैं देह नहीं हूं। ये देह आत्मा नहीं है, अनात्मा। तो ये इस प्रकार से विचार करके अनात्मा जो भी है, मन भी अनात्मा है। मन तो कंटिन्यूअसली बदलते रहता है। मैं खुद कहता हूं कि मेरा आज चंचल है मन, आज दुखी है मन। ये विचार के द्वारा क्या होता है? मैंने अपने मन को आत्मा से, या मन को हमने पहचान लिया कि यह आत्मा नहीं। तो इस प्रकार का देह, मन, प्राण, इंटेलेक्ट, जो भी इतनी बातों से हम संबंधित रखते हैं। तुम्हारा घर है तो मेरा घर है, मैं कर रहा हूँ। विचार करके सोचो कि मैं उनसे भिन्न हूँ, देह से मैं भिन्न हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये कंटिन्यूअस विचार बनाए रखना एक बहुत अच्छा तप, बहुत ही अच्छा तप है, लेकिन वेरी वेरी डिफिकल्ट। कंटिन्यूअसली इस स्तर के ऊपर बने रहो। पेट में दर्द हुआ तो कि मैंने दर्द नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, ये शरीर को दर्द हो रहा है। अच्छा खाना मिला, मुझे नहीं मिला है, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे अच्छा खाना न खाना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बूढ़ा हुआ, अरे बूढ़ा क्या हो गया? मैं तो बचपन में ही शरीर बूढ़ा हुआ था, और मैं बचपन में एक छोटा सा था, शरीर छोटा सा था। मैंने बचपन में शरीर के साथ आत्मा को जोड़ लिया। अरे ये 80 बरस हो गए, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी बनी हुई है। हम उसको सोच रहे हैं कि ये शरीर के साथ आत्मा है, ये मर जाएगी। नहीं मरेगी। अगर कंटिन्यूअसली बचपन से लेकर अभी तक मैं बना हुआ हूं, तो मरने के बाद भी बना रहे। ये सारे विचार है, इसको आत्मा अनात्म विचार, नित्य अनित्य विचार, अशुचि अशुचि। ये देह जो है वह गंदी है कई कारणों से,
उससे अपने मन को हटाना। ये सारी की बातें तुमको पतंजलि योग सूत्र में है ना, जी उसमें मेरे आर्टिकल्स में भी हैं और लेक्चर्स में। तो ये करना, इस लेवल पे बना रहना, ये बहुत ही अच्छा उच्च कोटि का तपस्या। दुर्भाग्य ये है कि होता नहीं है। हम तो हैं सन्यासी, हम कहाँ हमेशा कहाँ बना रहता। थोड़ा सा ही कुछ होता है तो हमारा मन इधर उधर चले जाता है कि अरे आज देखो वो मैंने बोला था कि भाई मेरे लिए थोड़ा सा बिना मिर्च का रखना, आज नहीं रखा, अब वो मेरा दर्द वहां चला गया। समझे ना? ये हमारा सारा जीवन हमारा दुख होता है कि ये सारा जीवन इस फिजिकल लेवल पे बीत जाता है, आत्मा के लेवल पे। महाराज क्या ये ज्ञान में तपस है, ये विवेक का तप है? डेफिनेटली ज्ञान में तपस। ज्ञान में remaining at the physical or intellectual अपना spiritual level continuously, जी। always thinking। ये शिव ज्ञान से जीव सेवा किया था, उसमें भी था ना कि रोगी नारायण की सेवा करो, रोगी के बदले नारायण कंटिन्यूसली सोचो, देन इट बिकम्स ए ज्ञानमय तप। इसलिए ये सेवा को बहुत अच्छा तप काइट का तप बनाया जाता है, क्योंकि वो इट इज अ वेरी हाई टाइप ऑफ स्पिरिचुअल। और सुनाओ, आगे चलो दिलीप भाई। नहीं, बस खत्म हो गया मेरे सवाल। अच्छा, अब आगे ले, तुम्हारे दूसरे प्रश्न ले। जी मेरा स्वाध्याय पे पहला एक प्रश्न है सिर्फ हाँ, कि आउट ऑफ द 3 मेथड्स which method should be adopted for a worldly person? कौन से 3 मेथड है? हाँ, मैं स्वाध्याय में 3 आत्मा अनात्मा का विचार, नहीं, साधना की विचार। स्वाध्याय अकेले एक दो व्यक्तियों के साथ या सामूहिक रूप में किया जा सकता है। इन हाँ। तीनों पद्धतियों का अपना अपना महत्व है। तो जो आपको ठीक लगे करो, जी जो आपको सूटेबल होवे। जैसे हम खुद भी करते हैं और हमारे क्लास 2 क्लासेस होती है, 3 क्लासेस होती हैं। 15 मिनट हम सुबह खाना का ब्रेकफास्ट के बाद में एक स्वामी के पास जाके कंप्लीट वर्क्स और स्वामी विवेकानंद को 15 मिनट पढ़ते हैं। दोपहर को 10:15 बजे से लेके और 11:15 बजे तक हम दूसरे स्वामी जी के साथ में आजकल जातक कथा लेते हैं, पहले दूसरा कुछ लिया था कंटिन्यूसली। और फिर शाम को 3:30 बजे से 4 बजे तक हम श्री रामकृष्ण भागवत इत्यादि पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो तीनों स्वाध्याय, 3 प्रकार के स्वाध्याय ये एक ग्रुप के साथ कर रहे हैं, यार 2 जने कर रहे हैं। उसमें कभी 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं। हम ही पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। मॉर्निंग क्लास में ब्रह्मचारी जो हमारे से जूनियर स्वामी है वो पढ़ता है कंप्लीट वर्क। और बाकी हम अपने कमरे में हैं तो अपना जो राइटिंग वर्क है, ट्रांसलेशन वर्क है, एडिटिंग वर्क है, ये सब हम करते रहते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर्सनली करते रहते हैं। और रात को हम वचनामृत को सुनते हैं, श्री रामकृष्ण वचनामृत को सुनते हैं, वो भी तो स्वाध्याय ही हुआ। तो ये पर्सनल हुआ या फिर 2 के साथ में हुआ या सबके साथ में। और जब हम प्रवचन करते हैं तो वो तो 8-10 लोगों के होते हैं और हम प्रवचन करते हैं, ये भी एक स्वाध्याय होगा। तो आपको जो ठीक लगे, ये तो इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है, आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है। जी महाराज। नेक्स्ट। अब मेरा सवाल जनरल है। अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा क्रोध को कम किया जा सकता है, लेकिन जीवन में निरस्ता आ जाती है, उस निरस्ता को कैसे दूर करेंगे? ये तो हमारा पहले भी प्रश्न आपका था कि वैराग्य से निरस्ता आती है, वैराग्य खास करके। हाँ। तो वैराग्य वही राग नहीं होगा। जहां पर हमारा राग है, अटैचमेंट है, जहां सुख मिलता है, उसमें हमको निरस्ता नहीं आती। और सब छोड़ देंगे, वैराग्य आ जाएगा तो वैराग्य नीरस हो जाएगा। ये एक विचित्र भ्रांत धारणा है। वैराग्य से अभय तो होता ही है, और वैराग्य जैसी शुभ चीज और भी कुछ नहीं है। और उसको हमने ऐसा भी कहा है, वैराग्य का आर्टिकल में हमने ठीक से बताया था कि वैराग्य का एक उपाय है भगवान में अनुराग। भगवान में अनुराग यदि करोगे तो संसार से वैराग्य अपने आप आ जाएगा। तो अगर केवल नीरसता होवे, संसार से मन हटाएंगे और भगवान में नहीं लगाएंगे तो नीरसता डेफिनेटली आएगी। लेकिन अगर भगवान में आपका बढ़िया मन लग गया, स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान में मन लग रहे हैं, तो आपके जीवन में निरस्ता नहीं आएगी, वैराग्य स्वाभाविक रूप से होता है। तो ये
हम तो भाई हम जानते हैं कि हम ध्यान करने में जो हमको आनंद मिलता है, तो आपका संसार की जो चीजें हैं सब फालतू हो जाती हैं, उसके सिर्फ मन जाता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ हमारा तो रस ही रस है। रस तो वैसे ब्रह्म को कहा है वो रस स्वरूप है। भगवान का ध्यान करना, ब्रह्म का भी निर्गुण निराकार भी जो है ना, उसका ध्यान करो तो उसमें इतना रस आता है जो संसार के विषय भोगों में भी नहीं आता। तो महाराज कहीं निर्गुण निराकार में किसका ध्यान होता है? हाँ? निराकार में परमात्मा चैतन्य स्वरूप जो सर्वव्यापी है, एक सत्ता है, एक बड़ी सत्ता है, भगवान जिसे आप कह लो। जी तो अब जब भगवान का तुम ध्यान करोगे तो आप तो कृष्ण का ध्यान करोगे तो वो तो रसी रस भरा हुआ है, रसो वैसे भगवान तो रसमय ही। उनकी आप लीला का चिंतन करो ना, वो कहाँ रहे, अपने आप वैराग्य आ जाएगा। गोपियों में कितना वैराग्य था, जी अपने आप वैराग्य हो गया था, सब कुछ छूट जाएगा। भगवान का ध्यान कीजिए, सब वैराग्य छूट। केवल जो लोग भक्ति नहीं करते, केवल वैराग्य को लेकर विचार करते 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 हैं, उनके जीवन में निरसता आ सकती है। लेकिन जब आप कह रहे हैं अभ्यास, जी तो अभ्यास में तो मन को किसी चीज में लगाना पड़ेगा। और वो जिस चीज को लगाया जाएगा वो तो रस स्वरूप है, हम्म, समझे ना। तो जी उस रस स्वरूप में मन को लगाइए, अपने आप संसार की चीजें, बाकी चीजें छूट जाएंगी। अभ्यास भी कीजिए, वैराग्य दोनों। जी और विषय को छोड़े बिना भगवान में मन नहीं जाएगा, ये याद रखिए। नेगेटिव पास भी आवश्यक है। हो गया? जी महाराज नेक्स्ट है, भगवान ने हमें संसार में फंसाया है, तो उन्हें संसार से निकालने के उपाय भी बताए हैं। उपाय पातंजल योग सूत्र में मिलते हैं। स्वामी जी ने भी उपाय बताए हैं, वो पातंजल योग सूत्रों से भिन्न है। दोनों में सामंजस्य कैसे है? हैं? अरे सेवल स्वामी जी क्यों, स्वामी जी सेवा बताते हैं। भक्ति जो है वो भी पातंजलि योग सूत्र से भिन्न है। जी ब्रह्म सूत्र में जो उपाय बताया है वो पातंजलि योग सूत्र भिन्न है। हाँ तो स्वामी विवेकानंद ने तो 4 योग बता दिए, ज्ञान योग, भक्ति योग, राज योग और कर्म योग। तो 4 अलग अलग बता दिए हैं, जिसको तुमको जो लगे वो करो। अब इसके अलावा श्री रामकृष्ण तो और भी कहते हैं, जो तो मत तो पथ। जितने मत हैं, जितने व्यक्ति हैं, उतने मार्ग हैं, तुमको जो मार्ग अच्छा लगे वो करो ना भाई, उसमें विरोध की क्या बात है। तुमको नहीं लगता है स्वामी जी का कर्म योग, तो मत करो। तुमको ज्ञान भक्ति, उनको राजयोग चल रहा है तो ध्यान करो, किसने मना किया। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि मिला के करो, कर्म भी करो, भक्ति भी करो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 50% भक्ति करूंगा, 30% योग करूंगा, 10% ज्ञान करूंगा और 10% कर्म करूंगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन कर लो। कोई कहेगा कि नहीं मैं 40% में कर्म करूंगा, 20% ज्ञान करूंगा और 5-5-10% भक्ति और योग, कॉम्बिनेशन कर लो। तो ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है, जितना आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो। श्री रामकृष्ण कहते हैं जितने मत उतने पथ, 1-2 नहीं, 4 योग भी नहीं, 50 योग। यानी जो आपका मत जो है वो दिलीप भाई का मत, हमारा ये भाई, मेरा ये मार्ग है और अशोक महाराज का ये मार्ग है, बस अलग मार्ग है हमारे। डिस्कशन से थोड़ा सा फायदा होता है, एक दूसरे को समझ में आती है बात, हम और क्लियर हो जाता है। जी आगे जी एक जगह बताया है, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है, उसमें मूर्ति की प्रतिष्ठा होना चाहिए जो जागृत हो। मूर्ति जागृत कैसे होती है? वो एक कहानी है, वो उसमें है एक, क्या है वो, पोदो तेरे मंदिर में तो शंख फूंक रहा है, मंदिर में तो, पोदो, हाँ है ना, हाँ, पोदो ही तो। पोदो हाँ। हाँ महाराज, यस पद्मलोचन। महाराज, पद्म क्या नाम उसका ना, पद्मलोचन, पद्मलोचन। पद्मलोचन एक छोकरा था, उसमें एक मंदिर के पास में, गांव के पास में एक मंदिर था, उसमें पूजा वूजा होती नहीं थी, कोई मूर्ति भी नहीं थी, केवल मंदिर बना हुआ था। एक दिन ये छोकरा गया और उसने वहां जाके जोर जोर से शंख बजाने लगा, शंख बजाने लगा कि यहाँ पे मंदिर की उसकी पूजा पद प्रतिष्ठा हो गई है, अब लोग आएंगे, सब दौड़ दौड़ के आए कि चलो भाई पूजा हो गई।
वहां देखा कि वो कोने में बैठ के हंस रहा है। तो कहा, अरे वो दो, तेरे मंदिर में तो पूजा प्रतिष्ठा तो हो ही नहीं है, तू फालतू शंख बजा रहा है। यानी हमारे जीवन में भक्ति तक्ति नहीं है, हम बाहर नो ढोंग कर रहे चमचिका। हैं, दिखावा कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तो आपका ये प्रश्न है कि पहले मंदिर बनाइए, उसके बाद मूर्ति कीजिए। मंदिर भी बना और मूर्ति भी बनी। काल दक्षिणेश्वर का मंदिर बना, उसमें माँ काली की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई, ठीक है ना। जी उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद श्री रामकृष्ण अन्नभोग जैसे होती। पुजारी मिले, तब वो मूर्ति वहां पर जागृत हुई, वहां पर उस मूर्ति के अंदर देवी का प्रकाश हुआ, आविर्भाव या हुआ। जागरण हुआ। तो ये तो पुजारी के ऊपर निर्भर करता है, भक्ति के द्वारा उस मूर्ति को प्रतिष्ठित, उसको जागृत करना, बिना उसके नहीं होता। तो पहले मंदिर होना चाहिए, अच्छी मूर्ति होना चाहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहां पर तन्मय से होकर पूजा करने वाला पुजारी होना चाहिए, तब वह मूर्ति जागृत होती। हो जी गया दिलीप भाई? यस जी। अगला। हाँ जी। पतंजल योग सूत्र और भक्ति योग में से कौन सी पद्धति के द्वारा ब्रह्मन अनुभूति सरलता से प्राप्त हो सकती है? सरलता से प्राप्त हो सकती है, दैट इज माय। तो प्रश्न क्या है? पतंजल योग सूत्र और भक्ति योग ये दोनों अलग हैं। हाँ हाँ, हाँ, उसमें से कौन सी पद्धति से सरलता से प्राप्त हो सकती है? आपको जो अच्छा लगे बोलो। क्योंकि तब स्वाध्याय करना इतना संभव नहीं हो सकता है हर वक्त। हाँ, अब भगवान के लिए क्या रोना, मुंह में आंखों में आंसू आते हैं? हाँ, मुश्किल है। और इस तरह सोचा था, मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ा दिया और अगरबत्ती जला दिया, पूजा कर दिया, उससे भगवान नहीं प्रसन्न होते। भक्ति भक्ति यानी तो है गोपियों की जैसी भक्ति थी वैसी होवे तब भगवान प्रकट होते हैं। जी हाँ, व्याकुल होना पड़ता है। ठाकुर ने ऐसी व्याकुलता हुई कि अपने खड्ग लेके अपने गर्दन पे मारने लगे कि माँ दर्शन दे, नहीं तो मैं अपने को समाप्त कर दूंगा। ऐसी भक्ति होवे तो भगवान प्रकट होते हैं। तो कोई भी मार्ग आसान नहीं है। सभी मार्गों के अंदर तपस्या आवश्यक है, त्याग आवश्यक है। भक्ति में कहाँ होता है भगवान से प्रेम? तो आपके श्री कृष्ण तो इतने बढ़िया हैं, उन्होंने इतनी लीला कर दी है, इतने सुंदर बना दिए हैं, तो भी कितने लोगों को दर्शन होते हैं। वो थोड़ा कीर्तन कर लिया, रास कर लिया, बस ऐसे नहीं होता। सभी के अंदर तपस्या, सभी के अंदर त्याग वैराग्य के बिना नहीं होता। भगवान कहते हैं ना, वो है जेलस लवर। भगवान ऐसे हैं जो ठीक ठीक उनको प्यार करता है ना, तो उसके पहले उसका जो प्रियतम लोग है, उसके पहले तो उसका संसार चौपट कर देते हैं, उसका धन संपत्ति बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद में उसका सबसे प्रिय जो बच्चा है उसको मार डालते हैं। क्यों? ये अब मेरे से ये सब चीजों से मन हटा के वो मेरे को प्यार करेगा। तो बाबा भक्ति योग और ज्ञान योग कहो या पतंजल योग कहो, सभी दोनों कठिन कठिन है, है। इतना आसान नहीं। जी महाराज। ठीक है। हाँ, जी हाँ। हाँ महाराज, नेक्स्ट सवाल है, ओम का जब सर्वदा सदा करना चाहिए, जब ओम ही ईश्वर है और उसका जप करो, तो फिर साधकों को अलग अलग मंत्र क्यों दिए जाते हैं? ये तो अब वो जब वासुदेव को कहते हैं ना, तो कहते हैं वासुदेव ही भगवान है। जब काली बोलते हैं तो कहते हैं काली ही भगवान है। रूप अलग अलग है। ये जितने अलग अलग मार्ग है ना, वो अलग अलग भगवान के ये जो प्रतीक है, जी ये बहुत सारे प्रतीक हैं। ओम भी एक प्रतीक है। काली यानी क्या? काली यानी मूर्ति नहीं, काली तो ब्रह्म है। हाँ। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण तो भगवान स्वयं है। इसी तरह ओम है जो है वो ब्रह्म है। तो अगर मानने मात्र से हो जाता है तो आपका ब्रह्म दर्शन हो जाएगा? नहीं होता ना, उसकी उपासना करनी पड़ती है, ओम का जप करना पड़ता है। उसी प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना पड़ता है।
या फिर राम का जप करना पड़ता है, या फिर काली का मंत्र को काली दुर्गा के मंत्र जप करने पड़ते हैं, उनकी उपासना करनी पड़ती है। तो ये तो विभिन्न अलग अलग पथ हैं। अब वो आप उसमें आपने केवल ओम को ब्रह्म माना, लेकिन कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान स्वयं ये भी नहीं ये मानो, तब हो गया ना, विरोध हो गया दोनों का। जो कृष्ण वाले हम वो कहेंगे कि हम ओम को नहीं मानते, हम तो कृष्ण भगवान स्वयं मानते। अच्छा जी। तो ये तो अपने ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, जो कौन सा आपको जब मंत्र चाहिए और कौन सा इष्ट चाहिए, किस मार्ग से जाना। ये प्रतीक है, प्रतीक और प्रतिमा। हाँ, तो ओम प्रतीक है। ओम प्रतीक है। उसी प्रकार से ये जो मूर्ति है, काली की मूर्ति है, वो प्रतीक है। जी। कृष्ण की मूर्ति प्रतीक है, उसके माध्यम से हमको अच्छी लगती है, उसके माध्यम से जाओ ना, आप कृष्ण को पहुंच जाओगे, भगवान को पहुंच जाओगे, ओम के माध्यम से जाओ। तो वो ओम को तस्य वाचकः प्रणव, ओम को क्या है, ओम एकाक्षरम ब्रह्म, ओम है ब्रह्म, एक ब्रह्म ही है। और उसके बाद आगे भी कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, ओम जो है ब्रह्म का वाचक है प्रणव। तो एक जगह तो उसको वाचक कहते हैं यानी प्रतीक कहते हैं, और दूसरी जगह उसको ब्रह्म को एक करते हैं। ये दोनों बात करते हैं, ये सभी जगह है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि नहीं कहा था, मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो, तो तुम क्या बोलोगे? दिलीप। दिलीप। अरे दिलीप तो तुम्हारा नाम है, तुम अपने आप को दिलीप कैसे बोल रहे हो? तो एक समय तो हम अपने आप को नाम के साथ एक कर लेते हैं, और एक समय हमारा नाम और हम उससे अलग हो। इसी प्रकार से भगवान को एक तो नाम दे दिया है और नाम के साथ एक भी कर दिया। तो जब आप साधना करते हैं तो हम प्रतीक को लेकर करते हैं, या ओम का या भगवान जो भी है रूप को लेके हम साधना करते हैं। अल्टीमेटली हम वहां तक। जी। महाराज काली की मूर्ति प्रतीक है कि प्रतिमा? प्रतीक प्रतिमा दोनों एक ही चीज। प्रतीक यानी सिंबल, और प्रतिमा यानी इमेज, वन एंड द सेम थिंग। प्रतीक प्रतिमा। हाँ। अच्छा निवेदिता, तुम्हारा कोई प्रश्न और नहीं है क्या? है ना? और एक है अयुक्त और युक्त मन। अयुक्त माने डिस्टर्ब माइंड, और युक्त मीन्स कंसंट्रेटेड। युक्त न मनसा सह भगीता में जो कहते हैं ना, अयुक्त युक्त न मनसा सह, है ना? युक्त मन और युक्त मन वो गीता में ही आया है। तो युक्त मन यानी क्या है कि कंसंट्रेटेड माइंड। तो जो भी काम करोगे वो पूरे मन से करोगे, जो डिस्कस हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड रूप से पूरे मन से कोई भी जो भी काम करना है वो पूरे मन से करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर पूरे मन से सो भी काम, तुम खाना बनाते हो पूरे मन से बनाते हो, सोते हो सो पूरे मन से सो, झाड़ू लगाना है पूरे मन से लगाओ, ध्यान करना है, पूजा करना है, पूरे मन से करो, तो मन हमारा ऑटोमेटिकली युक्त हो जाए। दिलीप भाई और कोई प्रश्न है? महाराज ये युक्त और कंसंट्रेशन इज वन एंड द सेम वर्ड? वन एंड द सेम थिंग, टेक इट फॉर राइट। जी। युक्त है ना, जो भी काम करना है वो पूरे कंसंट्रेशन से करो, इट बिकम्स युक्त। महाराज एक मेरा सवाल है कि मंत्र दीक्षा में जब मंत्र दिया जाता है और जब साधक दूसरे धर्म का हो, तब सामने ठाकुर जी या स्वामी जी के सामने बैठकर मंत्र जब करने लगे तो ध्यान में मूर्ति अलग आती है, या अपने धर्म की मूर्ति को देखना है या स्वामी जी की मूर्ति को देखना? अगर आपको मंत्र स्वामी जी का या श्री रामकृष्ण का मिला है, हाँ, तो वो बाहर दूसरी मूर्तियां होंगी, वो उसके अंदर मर्ज करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा है कि शुरू में बचपन में तो हम मंदिर में जाते थे, जैन मंदिर में जाते थे। अब फिर कभी बीच में हो गया तो हम राम जी को बहुत अच्छा प्रेम करते हैं, राम नाम संकीर्तन अच्छा लगता है, फिर वो कृष्ण लीला अच्छी लगती है, तो ध्यान करेंगे तो 3-4 लीला आने लग जाती, 3-4 आने लग जाते हैं। उसके बाद जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कहते हैं कि नहीं भाई तुमको एक कोई करना पड़ेगा। तो उसमें से डिसाइड कर लिया राम कृष्ण या काली, इतने सब मन में विचार हैं, उसमें से गुरु ने डिसाइड करके एक दे दिया रूप आपको, नहीं अब राम कृष्ण का आप करो। तो अब उसके बाद में जब विभिन्न प्रकार के रूप उठेंगे उसको राम कृष्ण में विलीन कर,
मर्ज कर दो जब ध्यान करोगे तब। यानी एक पिक्चर आया तो उसमें जब दूसरी तरफ दूसरा पिक्चर आएगा, राम का पिक्चर आएगा, तो उस पिक्चर को रामकृष्ण में विलीन कर दो, अगर आपको वो मंत्र दिया गया। इसलिए जनरली गुरु जो है वो पहले जमाने में, आजकल तो सब बदल गया है, पहले जमाने में तो गुरु केवल रामकृष्ण मिशन के भी जो गुरु होते थे वो सबको रामकृष्ण का मंत्र नहीं देते, पता लगा लेते थे, सोच लेते थे, उसके बाद कर करके समझ के उसके बाद देते थे। मैं जानता हूँ एक है डिवोटी, उसको उन्होंने वासुदेव का मंत्र दिया, हमारे वीरेश्वरानंद जी नहीं दिया। अब वो उसको अगर तुम्हारे मन में पक्की तरह बात बैठ जानी चाहिए कि ये श्री राम कृष्ण वही राम है, वही कृष्ण है, और इसलिए जब आप बैठोगे ध्यान करने के लिए, तब अगर राम कृष्ण के बाद बदले राम और कृष्ण आया तो उसको अंदर मर्ज कर दो, दोनों एक ही है, राम कृष्ण का ध्यान और वो करना एक ही है। तो शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, लेकिन बाद में ठीक है। महाराज, हाँ महाराज ये तो इष्ट निष्ठा हुआ ना, एक हाँ, इष्ट देवता के ऊपर अपने कंसंट्रेशन रखना, हाँ, तो उसी हिसाब से एक संप्रदाय बन जाता है। हाँ, तो फिर दूसरे संप्रदाय के ये सर्वधर्म समभाव जो है, इसके साथ इष्ट निष्ठा को कैसे, हाउ डू यू भाई- रिकंसाइल दिस टू? तो भाई बिकॉज ये है कि भाई जो तुम मुसलमान हो तो भाई ठीक है, वेरी गुड, तुम अल्लाह की पूजा करो, अल्लाह का ध्यान करो, अल्लाह की नमाज वगैरह पढ़ो, मैं रामकृष्ण को मानता हूँ, तो देयर इज नो डिफिकल्टी विथ यू। तो वो तो अच्छा लग रहा था। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं कि तुम रामकृष्ण को मानो, और वो फोर्स नहीं कर रहा है कि तुम अल्लाह को मानो। तो हमारे तो बहुत सारे हैं अलग अलग अपने अपने एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रामकृष्ण मिशन का फंडामेंटल है, श्री रामकृष्ण का फंडामेंटल, जो तो मत हो तो पत, इतनी होते। अब वो आजकल जो जमाना बदल गया, पहले कहा ना कि पहले तो था कि 50-100 साल तक हमारे गुरु लोग भी राम मंत्र दे देते थे, कृष्ण मंत्र दे देते थे। अब हम नहीं बता सकते, आज का अगर हमको किसी को बोलना है कि भाई तुम्हारा इष्ट कौन है, मैं नहीं बता सकूंगा, तो मैं क्या करूँ भाई, रामकृष्ण। वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि किसी सामने वाला व्यक्ति है उसका इष्ट क्या, इसलिए ये प्रॉब्लम। नहीं, हमारा सवाल ये आता है कि 30 साल तक हमने एक भगवान घर के अंदर जो चल रहा था धर्म, वो धर्म को हमने देखा, उस भगवान से मिल जाते थे, और बाद में हमने मंत्र दीक्षा रामकृष्ण के ली, पर वो भी हम बाद भी हम वही मंदिर में जाते हैं, तो उस समय हमारी नजर किधर रहेगी कि यदि हम महावीर स्वामी को देखेंगे तो ये समझेंगे कि क्या ये रामकृष्ण है। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। जैसे हम जाते हैं, हमको जाना, हम राम मंदिर में गए जी, विश्वनाथ मंदिर में गए है ना, हाँ या तो विश्वनाथ है, हमने हाँ हाँ विश्वनाथ को प्रणाम किया, हम मन ही मन सोचेंगे कि विश्वनाथ रामकृष्ण जी, ये बात, रामकृष्ण और विश्वनाथ में कोई अंतर नहीं। जी। महाराज, आखिरी सवाल है, विद्या माया के द्वारा अविद्या माया दूर हो जाती है, लेकिन फिर विद्या माया में उलझ जाते हैं, उसे कैसे दूर करेंगे? वो हो जाता, अगर ठीक ठीक सिंसियर आदमी हो तो विद्या माया अपने आप चली जाएगी। अच्छा, अगर जी, सिंसियर हो तो अपने आप चली जाएगी, नहीं तो इसमें कोई शक नहीं कि वो फंसाती है, बहुत जबरदस्त फंसाती। जी, इसलिए भी भाई, यह बात तुमने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बिल्कुल सिंसियर और रैशनल प्रश्न है। कई लोगों को अच्छी तरह बुरी तरह फंसाती है, अगर वो नहीं समझें कि हम ये हमारे बांधने बात, ऐसे में लोग उसको छोड़ दे रहे, ठीक है सर ये छोड़ो इनको, अब मैं ये नहीं चलूंगा, उसको भी छोड़। उसके बाद में सबको छोड़ के, और उसके बाद में जैसे सेवा कार्य है, हॉस्पिटल बना दिया है, ये सेवा किया, बढ़िया क्या था, तुम संसार में तो नहीं, कामिनी कांचन में नहीं पड़े, आपने हॉस्पिटल बना दिया, तो पैसा इकट्ठा किया, पहले आप करते खुद कमाते थे, अब आपने 1 करोड़ रुपया हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा किया, अगले साल 2 करोड़ इकट्ठा किया, बस उससे फंसे हुए। तो ऐसे भी लोग होते हैं कि जब कर लिया उसके बाद छोड़ देते, छोड़ के चल देते।
अब हमको नहीं करना है, जो हमने कर लिया सो कर लिया, अब तुम लोग संभालो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद में भगवान के भजन में लगे रहे, यस और केवल भगवान का भजन, और उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड होते होते उसके बाद में वो भगवान के साथ एक हो जाते हैं या उसी के लेवल पे रहते हैं। तो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है कि ये कई लोगों के जीवन में विद्या माया बंधन का कारण। राइट जी, सवाल समाप्त हो गया मेरा। हो गया? जी अच्छा सुबीर, और कुछ? महाराज जी, सपना का एक सवाल था, हाँ, वो निर्वाण षटकम। उसको बोलने ना, वो नहीं बोलना चाहती क्या? बोलो सपना, बोलो। हाँ। निर्वाण षटकम में जो ये है ना, न मृत्यु न शंका न में जाति भेद, पिता नहीं तो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। माता न जन्म, माता भी नहीं हो, पिता भी नहीं हो, जन्म भी नहीं नहीं हो। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से सुबीर। मैं बोल रही हाँ। हूँ, न मृत्यु न शंका न हाँ। में जाति भेद, पिता नहीं में व, जाति मैं भेद है। नहीं व, माता न जन्म, न बंधुर न मित्र, गुरुर न शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो ये जो अगर सारा चीज, मैं माँ भी नहीं हो, पिता भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो जो ये जो प्रोडक्शन जो हो रहा है, तो ये क्या है? मैं तो शिवोहम हूँ, तो फिर शिव हूँ। जन्म कैसे हो रहा है? जन्म रहित एग्जैक्टली वो तो सब है, कुछ भी नहीं। हम वी आर सो अटैच्ड टू द फिजिकल बॉडी, तो हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता हैं, बट वी आर नॉट द बॉडी। इफ यू हैव नॉट बॉडी, व्हिच बॉडी विल बी बोर्न? देयर इज नो बॉडी। जैसे मैंने कहा ना कि अभी थोड़ा सा विचार करके आप देखोगे कि हमारी फिजिकल एज जो है वो 60-80 एज की हो गई है, लेकिन आई एम कंटिन्यूइंग द सेम। जो चाइल्ड था तब भी आई था, और अभी 80 का हूँ तब भी आई हो। What is this? This is Atman. This is Satchidananda Swarup. And when I die, it will remain. When it was not born also. it was there. It is only illusion. ये illusion दूर कर दिया। What a blessed thing. I am the Atman. ईश्वरानंद जी बोलते थे कि every day we must repeat this. Give an injection of Vedanta, Advaita every day. एवरी डे ये निर्वाण षट को एवरी डे चैंट करना चाहिए। मैं यही करती हूँ महाराज, रोज चैंट करती हूँ। तो फिर ये प्रश्न क्यों उठता है? तो प्रश्न क्यों उठता है? ये द क्वेश्चन ऑफ अराइजिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके स्ट्रॉन्ग और नॉट फ्रॉम यू। दैट्स ऑलराइट। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट बॉर्न, नो क्वेश्चन ऑफ गुरु शिष्य कुछ नहीं है, यू आर आत्मा। ओके, सच्चिदानंद स्वरूप। ओके ठीक महाराज। अच्छा, और किसी का? सुबीर तुम्हारा कुछ नहीं? तो महाराज मेरा एक ये कहना था कि हम इतने समय से आपके साथ जुड़े हुए हैं हर हफ्ते, तो ये एक व्रत हमने लगाया था झगड़िया में। आपने बताया था कि हाउस होल्डर्स के लिए एक व्रत होना चाहिए, उस पर चलने की कोशिश करो। तो क्यों ना आप हमें ये व्रत जो झगड़िया के सिवाय भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताएं। ठीक है, हम भेज देते हैं जी। हम नेक्स्ट ईमेल से अपने दिलीप, अपने संजय के साथ में, संजय जी के थ्रू आप लोग सबको भेज देते हैं वो। हाँ। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। वी कैन हैव इट कैन बी ए मींस ऑफ डिस्कशन आल्सो, दैट कैन आल्सो बी डन, क्योंकि बहुत सारे लोग तो झगड़िया के नहीं है ना। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि पंकज भाई कितने हैं लोग झगड़िया? अपने सेवा रूरल से कितने लोग जुड़े हैं पंकज भाई? संजय, पंकज भाई जुड़े हैं? हेलो, हाँ जुड़े हैं। हाँ पंकज भाई, कितने लोग जुड़े हैं सेवा रूरल? सेवा रूरल से कुल 12 लोग जुड़ते हैं, फैमिली कम है। ओके, या ठीक है, एनीवे 12 है ना? हाँ। तो अभी जो देयर इज ए नाइस सजेशन है इज देयर, हाँ, तो हाँ। हम ये भेज देंगे, बिकॉज अभी आज पता नहीं कितने जुड़े हैं, लेकिन 10, 12, 15 तो और नए चीज लोग हैं, उनको भी दे विल आल्सो नो दी योर, ये अपने हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं सेवा। जरूर। ओके। तो
तो यानी आप भेजेंगे, कैसा करना है? नहीं वो भेज देता हूँ मैं. आई विल लेट गिव मी सम चांस टू थिंक नेक्स्ट क्लास क्या करना है, क्या सब्जेक्ट देना है. ऑल हाँ. दैट आई विल जस्ट प्लान आउट. ओके, ओके, आई विल टॉक टू यू. ठीक है. अच्छा, और अभी जो इतु, तुम्हारे सब क्वेश्चंस हो गए? जी मेरा हो गया. निवेदिता के भी क्वेश्चंस हो गए? और किसी के कोई क्वेश्चंस बचे तो नहीं है? नहीं महाराज. मेरा एक प्रश्न था महाराज. हाँ. सिग्निफिकेंस ऑफ 1st जनवरी इन क्राइस्ट लाइफ. Oyo, no, I don't know, and I don't think there is no. I will try to find out from some Christians, ओके. but I don't know. I don't think there is any significance of 1st January. ये तो रामकृष्ण मिशन में कल्पतरु हो गया, इसलिए 1st जनवरी है, न्यू ईयर डे है, इसलिए. अपना हम लोगों का भी जो होता है ना, कि जब कहाँ होता है ना, हम लोग का नया साल होता है ना, बांग्ला नया साल होता है, और वो क्या होता है, गुड़ी पड़वा होता है. गुड़ी पड़वा इत्यादि होता है ना. गुजरात में गुड़ी पड़वा होता है. तो ये सब नए साल अलग अलग होते हैं. अपने विक्रम संवत का नया साल होता है, तो ये उसी तरह का एक नया साल उनका है, बस. महाराज एक प्रश्न है महाराज. वो कृष्ण ऐसा है ना कि क्रिश्चियन सिग्निफिकेंस क्या है, मैं पता नहीं. बोलो अब क्या प्रश्न है? महाराज वो संध्या गायत्री में लय होती है, गायत्री ओंकार में लय होती है, इसका अर्थ अगर बोले ठीक से. हाँ, वो हम, अच्छा ठीक है. इसी अगले ऐसा बार है वही कि लीजिए ये महाराज. दिस इज अ वेरी, अगले बार यही वो- लीजिए आप. अच्छा ठीक है. ये ओके, ये आई विल टेक इट अप नेक्स्ट ठीक, टाइम. ओके, बहुत सुंदर है. ये तो इसको तुम लिख के भेज देना फिर से. जी जी ठीक है. ओके, तो संजय, कैन वी क्लोज नाउ? जी महाराज. We have done about 40 minutes and about 1 घंटे से कुछ 5-1 मिनट ज्यादा हो गया है. जी महाराज. जी ओके देन. ठीक है महाराज. प्रणाम महाराज. शांति श्री राम कृष्ण शांति. अर्पणमस्तु. ओम तत्सत्. श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु. संजय, अभी अचानक स्विच ऑफ मत करो. लोग जी आएंगे तो प्रणाम करते रहेंगे थोड़ा सा. जी.